Good morning, students. So today's topic is the remaining portion of teaching methods, that is clinical teaching methods. Okay, so definition: the clinical teaching is a individualized or a group teaching to the nursing students in the clinical area by the clinical instructor, staff nurse, and clinical nurse manager. Okay, the next is second is principles of clinical teaching methods. Okay, so first principle is it should take place in a with a very professional manner. Okay, the second is it is more important than classroom teaching, and third is the nursing students in the clinical teaching are the learners, not the nurses or the practitioner. Sufficient learning time should be given to the students before evaluating their performance. Okay, the next is it is supported by climate of mutual trust and respect. The trust and the respect is also for the patient, and there should be upgradation of knowledge, skill, and attitude. Why the clinical teaching methods? Okay, here the quality is more important than quantity, means the number of students should not be larger. Then the next is methods of clinical teaching. Okay, so various methods are like bedside clinic, nursing care conferences, nursing rounds, demonstration, nursing case study, clinical simulation, and virtual learning. Okay, so here the most important clinical teaching methods are bedside teaching. Okay, then next is a nursing care conference, then the next is nursing rounds and case study methods. Okay, so here I will only focus on bedside clinic, nursing care conference, nursing round, and nursing case study. The first method is bedside clinic. As the name suggests, the teaching that usually take place in bedside of the patient. So it is a process in which a clinical teacher and a group of learners sees a patient, elicits or verifies physical signs, discusses provisional diagnosis, diagnostic or therapeutic options in the clinical setting. So it's a teaching methods you have seen in your clinical area. Okay, so here is a clinical teacher teaches the students various aspects of teaching, like physical science, physical examinations, demonstrations, clinical nursing procedures. Okay, and other types of teaching. देन द नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस. ओके, तो फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को टू डेवलप एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी. ओके, एंड सेकंड इज़ इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग प्रमोट होती है बिटवीन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर सिस्टम. एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट होती है. थर्ड, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज़ होती हैं, जैसे रीजनिंग, साइकोमोटर, कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट्स के यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं. ठीक है, प्रमोट होता है. देन द डिसएडवांटेज, उसका द मेन डिसएडवांटेज ये है कि समटाइम्स ये पेशेंट के लिए एम्ब्रेसफुल होता है. ठीक है. सेकेंड, इट्स नैरोनेस लिमिट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस. थर्ड, बेडसाइड क्लिनिक इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसीजर. एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसके लिए अगर हमें बेड साइड क्लिनिक को कंडक्ट कराना है तो हमें इसके लिए हॉस्पिटल सेटिंग में जाना होगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज़ नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस. तो नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंसेस में क्या है, हमारे पास यहाँ पे हम हॉस्पिटल एरिया में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं केयर कॉन्फ्रेंस को. लेकिन इसमें क्या, हमारे पास पेशेंट नहीं है, जैसे हम पेशेंट के डायग्नोसिस के बेस पे या उसके जो पेशेंट का जो डायग्नोसिस है, उसके सिम्टम्स, उस बेस पे हम यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है. सो नर्सिंग कॉन्फ्रेंस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ग्रुप डिस्कशन इज मेड यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स टू डिटरमाइन द वेज ऑफ प्रोवाइडिंग केयर फॉर द पेशेंट टू whom students are assigned as a part of their clinical experience. ठीक है. मीन्स कि नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस में हम एक कोई पार्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पे लेते हैं. ठीक है. जैसे पेन मैनेजमेंट को हमने देखना है कि एक पीडियाट्रिक वार्ड में पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं इन चाइल्ड्स में, तो हमें इसका जनरल डिस्कशन अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, उन जो केसेस है वहाँ पे उन केसेस को लेंगे. ठीक है. उससे रिलेटेड हम हिस्ट्रीज कलेक्ट करेंगे. देन पेशेंट को का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है वो हम यहाँ पे हिस्ट्री लेंगे, कलेक्ट करेंगे. तो उसके बेस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि पेन लेवल को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे रिड्यूस होता है.
ठीक है। तो नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस एक जनरल डिस्कशन होता है जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और जो टॉपिक हमने लिया है वो उससे क्या होना चाहिए, वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। ओके, देन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं क्लिनिकल नर्सिंग कॉन्फ्रेंस के। तो क्लिनिकल नर्सिंग के कॉन्फ्रेंसेस के एडवांटेजेस ये है कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इससे यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं। सेकंड, इट्स डेवलप्स टीम बिल्डिंग स्किल्स, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप में के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे टीम बिल्डिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, और एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ असर्टिवली, ठीक है। एंड द डिसएडवांटेज इसका ये है कि नर्सिंग कॉन्फ्रेंसेज मे नॉट बी वेरी बेनिफिशियल इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट कस्टमाइज्ड टू द क्लिनिकल सेटिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्लिनिकल सेटिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा जिनको जो कि क्लिनिकल सेटिंग में पोस्टेड अभी तक हुई नहीं है। और सेकंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि केयरफुल प्लानिंग चाहिए इसमें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़ नर्सिंग ग्राउंड्स। ओके, नर्सिंग ग्राउंड जैसे आपको पता है आप क्लिनिकल एरियाज़ में जाते हैं, देन वहाँ पे नर्सिंग ग्राउंड्स होते हैं कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स से पहले नर्सेस के राउंड होते हैं, बेड साइड वहाँ पे जाते हैं असेस करने के लिए कि पेशेंट को प्रॉपर केयर मिली ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जिससे आपकी टीचर के साथ भी आपका एक राउंड्स होता है जिससे आपको अपने डाउट्स क्लियर होते हैं। So nursing ground is a procedure in nursing education and in later practice in which one or more visits to a hospital patient are scheduled by 2 or more nurses to coordinate care, troubleshoot, respond to patient needs and share insights, ठीक है। तो मीन्स कि नर्सिंग ग्राउंड क्या होता है कि जनरली हॉस्पिटल में जो वहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक है, या असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, वो अपनी स्टाफ नर्स के साथ क्या करते हैं, राउंड्स लेते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। इससे पता चलता है कि पेशेंट की प्रॉपर केयर मिल रही है नहीं, पेशेंट की नीड्स क्या हैं, और स्टाफ पेशेंट को रिस्पॉन्ड करता है एनी टाइम से, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स के भी यहाँ पे इसे क्या होते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं। देन पर्पसेस ऑफ नर्सिंग ग्राउंड, नर्सिंग ग्राउंड क्यों करते हैं? फर्स्ट इज़ इससे टू एक्सप्लेन द प्लान टू द पेशेंट। समटाइम अगर हम प्रॉपर नर्सिंग ग्राउंड्स लेंगे तो हम पेशेंट को उसके प्लान को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस हम अपने नर्सिंग केयर्स को यहाँ पे स्किलफुली शो कर सकते हैं। टू क्लैरिफाई टर्मिनोलॉजी, समटाइम्स कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाती है, वो क्लियर हो जाती हैं। और डिजीज़, किसी डिजीज़ के लिए क्लाइंट का रिएक्शन क्या है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं। कुछ ड्रग के इफ़ेक्ट्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट में। सो अगर हमें पेशेंट के ओवरऑल प्लान को हमें असेस करना है, एवेलुएट करना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर नर्सिंग ग्राउंड लेना होगा। नर्सिंग ग्राउंड से क्या होता है कि पेशेंट को किसी मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, टाइम टू टाइम अगर नर्सिंग ग्राउंड्स होंगी तो ये प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और फॉर इसका एक इंस्ट्रक्शनल पर्पस भी है फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, कि उनके लिए नर्सिंग ग्राउंड से क्या होता है, उनको केसेस मिलते हैं, न्यू केसेस मिलते हैं, केयर प्लान के लिए उनको पेशेंट डायग्नोसिस मिल जाता है। देन द नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग ग्राउंड। तो फर्स्ट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट इज़ मोर नेचुरल, ठीक है। मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम डिजीज़ को हम जिन बुक्स में रीड करते हैं, देन हम अगर क्लिनिकल एरिया में हम पेशेंट के सिम्टम्स को नेचुरली देख रहे हैं तो इससे हमें हमारी नॉलेज अपग्रेड होगी, ठीक है। वो हमारे लिए बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। देन द सेकेंड इज स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट पेशेंट विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड प्लान प्रॉपर नर्सिंग केयर। Disadvantages, it requires a very careful planning. Second, only a small group of students can be taken at a time, ठीक है। अगर लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, अगर स्टूडेंट्स का ग्रुप ज़्यादा होगा तो वो पेशेंट के लिए भी पेशेंट भी उससे इरिटेटेड हो जाएगा। देन द नेक्स्ट इज़ केस मेथड। ओके, सो केस मेथड है, सो नर्सिंग केस स्टडी क्या होती है, क्लिनिकल केस स्टडी एक बहुत ओल्डेस्ट वे है टू लर्न एंड रिसर्च इन द मेडिकल एंड नर्सिंग फील्ड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पेशेंट्स के पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। देन उसको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ वंस पेशेंट सिचुएशन शुड प्रोवाइड अ रिच डिस्क्रिप्शन विदाउट आइडेंटिफाइंग दी पेशेंट। मीन्स कि जो केस स्टडी होता है, आपने देखा आपकी जो नर्सिंग केस स्टडी होती है उसके अंदर वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, जैसे पेशेंट के डेमोग्राफिक्स डेटा। मीन्स कि हमें अगर पेशेंट को विदाउट आइडेंटिफाई करने की से पहले ही हमें पूरा पेशेंट का हमें ओवरऑल डेटा पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके द क्लिनिकल केस स्टडी और रिपोर्ट कैन बी रिटन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। क्यों फर्स्ट इस कोई किस लिए हम केस स्टडी मेथड्स बनाते हैं, क्यों हमें जो डिजीज़ हम मेडिकल सर्जिकल में हम उसको पढ़ते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डिजीज़ को। डिस्क्राइब अ न्यू और रेयर डिजीज़। सेकंड, इट डिस्कस अ नर्सिंग प्रॉब्लम दैट इज़ यूनिक और मे बी टिपिकल बट नॉट नॉर्मली हैंडल्ड वेल।
Second, it educate about the mechanism of a disease or condition और outline adverse और beneficial side effects of drug और treatment. ठीक है, तो इस ओवरऑल केस स्टडी से हमें स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या यूज़ है कि जो और मैकेनिज़्म है डिजीज़ की और कंडीशंस, ड्रग्स के बारे में, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, ये सब स्टूडेंट्स को पता चलता है केस स्टडी मेथड से. ठीक है. देन क्लिनिकल सिमुलेशन मेथड है, ये मैंने आपको जब जो टीचिंग मेथड है, इंस्ट्रक्शनल टीचिंग मेथड है, उसमें एक्सप्लेन किया था. मींस कि सिमुलेशन में हम क्या करते हैं कि प्रोसीजर को जिस जो हमारे जो क्लिनिकल एरिया में जो अदर कोवर्कर्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, उसको हम जस्ट ऑब्जर्व करके लर्न करके सीखते हैं. ठीक है. Then next is virtual learning. So virtual learning is usually associated with online courses और online environment. मीन्स कि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में जिसमें हम क्या करते हैं, क्लिनिकल प्रोसीजर्स को लर्न करना सीखते हैं. ठीक है. मेनली दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज इनहेंस्ड थ्रू यूटिलाइजिंग कंप्यूटर्स एंड और द इंटरनेट बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द फैसिलिटीज़ ऑफ द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे उतना. सो जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स हैं वो यही थी: बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस, नर्सिंग राउंड एंड नर्सिंग केस स्टडी.